Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fine. So, student, in my previous video, I explained you what is evaporation and what is condensation. These are the two processes which take place in due to these two processes, that is evaporation and condensation. What happened? So, if that is the reason, if you are able to understand both the process, due to these two process, our water cycle. Now in today video, before explaining you water cycle, what is the water cycle? Recycling of the water from one form to another. What is water cycle? I will explain you in this video. So all the first of all, let little more discussion we do about condensation and evaporation. So, student, please take out your rough copy, and when you are watching the video, at that time, note down the important points. Is it clear? And if there is any doubt, student, you can note down the doubts in your rough copy, and in the online doubt session you can discuss your doubts with me. Is it clear, student? Okay, now I am teaching you. Today date is 11. We are on chapter number 9. So let do little recapitulation of the two process. What is evaporation and what is condensation? Okay, so student, now I hope you all are able to understand there are three forms of a water: solid, liquid, gas. Solid form is known as ice. Liquid form is water. And when it is in the form of a gas, then we say it as a water vapor. Is it clear? When it is in the form of a solid form of a water is ice, liquid form is a water, and when it is in the form of a gas, then we say it water vapor. We say it water vapor. That is the reason, student, a lot of examples we have discussed with you. Now one time more I give you the explanation once again of evaporation and condensation. Then what is water cycle we will discuss. Clear? Now listen it. Firstly, evaporation. Very simple method of understanding evaporation is that when we boil the water, or you can say when we heat the water, and I told you that the boiling point of water is 100 degree Celsius. So student, when you and the evaporation process works on heating. Okay, so when we or heating we can done by wood also, coal also, natural gas also. Is it clear? And even sunlight. So when we boil the water and its temperature is above 100 degrees Celsius, then what happens, student? This water start changing in the form of a water vapor. Is it clear? And how this happen? It happens on heating. पानी को बॉईल कर रहे हो, हीट कर रहे हो. हीट कैसे भी आप कर सकते हो. वुड को बर्न करके, कोल को, नेचुरल गैस है, एलपीजी आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है,
इज इट क्लियर? एंड इवन सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, इन मेथड से आप वाटर को हीट कर सकते हो। व्हेन यू हीट द वाटर एंड इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो ड्यू टू हीटिंग, ऐसा नहीं कि जरा सा पानी को हीट किया तो वो वेपर बन गया, दैट इज द रीजन आई हैव रिटन द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट इज 100। हीट करना मतलब ये नहीं बेटा कि आपने जरा सा उसे हीट किया, या तो वुड जला के किया, या तो केरोसिन ऑयल से किया, या एलपीजी गैस पे रख के किया। तो ऐसा नहीं है कि आपने बस फॉर फ्यू सेकेंड आपने ऐसा किया और वो वेपर फॉर्म में चेंज हो गया। नो, इट विल नॉट चेंज इन द वेपर फॉर्म। when it will change in the vapor form when boiling temperature of water is 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब इससे अबव होने लगेगा तो अब वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर फॉर्म में। किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन, द प्रोसेस बाय विच वाटर, देखो ओरिजिनल क्या है? वाटर है। द प्रोसेस मतलब वो ऐसा कौन सा मेथड है, प्रक्रिया है, ऐसा कौन मेथड है जिसको हम फॉलो करते हैं तो ऐसा होता है। इज इट क्लियर? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर ऑन हीटिंग। अब हमने हीटिंग इसको किया, हीटिंग अब तुम लोग को समझ में आ गया। हीट करना मतलब उसे गर्म कर रहे हैं। जैसे आपकी मम्मी लोग किचन में कुकिंग करती हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ फ्यूल यूज करना पड़ता है ना। जैसे स्टूडेंट, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी डू लॉट ऑफ physical activities in our day to day life, so for that we need food. Is it clear? We need food. Without, because food give us energy to perform different types of work. In the same manner, to boil the water, so when you heat the water, it means आप वाटर को गर्म कर रहे हो, तो अपने से गर्म नहीं हो जाएगा। या तो आप वुड बर्न कर रहे हो, या तो कोल यूज कर रहे हो, या केरोसिन यूज कर रहे हो, नेचुरल गैस यूज कर रहे हो। आपने किचन में देखा होगा कि आपकी मम्मी लोग जब कुक करती हैं, वाटर अगर आपको किचन में देखते होगे कभी कभी स्टीम निकलती रहती है, तो ये स्टीम क्या होता है? जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। जब उससे अबव वो हीट हो जाता है, देन इट स्टार्ट चेंजिंग इनटू ए वाटर वेपर फॉर्म, देन इट स्टार्ट चेंजिंग इनटू ए वाटर वेपर फॉर्म, and this is known as evaporation. This is known as evaporation, okay, okay. And what is this is known as evaporation on heating, heat कर रहे हैं, ठीक है। and what is condensation? See here, condensation, condensation, just put in your mind, कंडेंसेशन प्रोसेस इज ऑपोजिट टू इवापोरेशन, मतलब उसकी उल्टी है। इज इट क्लियर? इवापोरेशन प्रोसेस का ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है? कंडेंसेशन। यहां क्या होता है बेटा? इवापोरेशन में क्या था? वाटर था, वाटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के ऑपोजिट है। Here what you have? water on heating, गर्म किया, बॉयल किया, then it change into a water vapor. Now condensation मैंने क्या कहा? उसका ठीक उल्टा है, ऑपोजिट है। हाउ? अब देखो कंडेंसेशन में क्या होता है? वाटर वेपर होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है? वाटर वेपर होता है। और वहां क्या कर रहे थे? हीट। गर्म का विलोम हिंदी में क्या होगा? ठंडा, यही होगा ना। हॉट का ऑपोजिट आप लोग लिखोगे अगर इंग्लिश में, तो व्हाट इज हॉट का क्या होता है? कोल्ड होता है। हॉट का क्या होता है? कोल्ड होता है। तो इवापोरेशन में व्हाट वी आर डूइंग? ऑन हीटिंग हो रहा था, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, ओके। तो इवापोरेशन में किसको हीट कर रहे थे? वाटर को, and it is changing into water vapor. Now see, condensation is opposite, ठीक है। यहां वाटर को हीट कर रहे थे तब वाटर वेपर बन रहा था। अब इसको उल्टा कर दो, यहां वाटर को हीट कर रहे थे, देन इट चेंज इनटू वाटर वेपर। अब इसको ऑपोजिट करो, तो अब यहां पे क्या आ गया? वाटर वेपर है। व्हाट इट इज इन कंडेंसेशन? वाटर वेपर है,
और यहां क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। गर्म का उल्टा क्या होता है, ठंडा। तो कंडेंसेशन में क्या करते हैं, ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। कंडेंसेशन में क्या है, वाटर वेपर है आपके पास। अब ये वाटर वेपर वहां क्या हो रहा था, इवापोरेशन में, ऑन हीटिंग मतलब गर्म करना। अब यहां क्या आ गया, ऑन कूलिंग मतलब ठंडा करना। ठीक है, सो वाटर वेपर इज इन गैस फॉर्म। नाउ व्हाट्स हैपन ऑन कूलिंग, जब वो ठंडा हो जाएगा तो जो वाटर वेपर है वो गैस फॉर्म में था हीट करने पे, लेकिन जब कूल करोगे तो वो फिर से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। दैट इज कंडेंसेशन, दैट इज कंडेंसेशन। यहां पे क्या है, वाटर वेपर है, ऑन कूलिंग ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वाटर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? One more time, please see the board. We do the recapitulation because this process is very important to understand. If you are unable to understand what is evaporation and condensation, then you are unable to understand what is a water cycle. Is it clear? क्योंकि वाटर साइकिल में यही दो प्रोसेस होती हैं, वाटर साइकिल में यही दो प्रोसेस होती हैं, दैट इज इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। एक बार और देख लो ध्यान से, वन मोर टाइम, ओके। मैंने क्या बोला, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जस्ट ये चीज आपके माइंड में आ गई, देन दिस डेफिनेशन बिकम वेरी सिंपल फॉर यू। एंड फॉर दिस यू हैव टू वॉच, you have to see all the words. See, evaporation, evaporation में रॉ मटेरियल क्या था आपके पास, वाटर था, वाटर। ये चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ऑन हीटिंग। इवापोरेशन मींस, अब इसे ऐसे याद करो, इवापोरेशन मींस ऑन हीटिंग, कंडेंसेशन मींस ऑन कूलिंग। पहले ये दो वर्ड माइंड में रख लो। Put these two concepts in your mind. Evaporation how on heating and condensation on cooling. See, put this thing, two important points in your mind. How evaporation process take place on heating, and how condensation process take place on cooling. You are understanding what I am explaining? Now see what are the things on heating, on cooling. Now let's understand. इवापोरेशन मीन्स ऑन हीटिंग, गर्म कर रहे हैं, गर्म सनलाइट है, कोल है, केरोसिन ऑयल है, इज इट क्लियर, एलपीजी है। किचन में मम्मी ऐसे ही ना खाना बनाते हैं, ठीक है, गैस ऑन किया, गैस पे यूटेंसिल्स रखते हैं, अदर थिंग्स, या मदर कुक्ड, ओके। तो इवापोरेशन मीन्स ऑन हीटिंग, कंडेंसेशन मीन्स ऑन कूलिंग। अब नाउ सी, फर्स्टली हम लेते हैं इवापोरेशन को। ऑन हीटिंग, किसको हीट कर रहे हैं, ऑन हीटिंग व्हाट, सो आंसर कम वाटर। Try to understand, it is very simple. One time if you understand the concept, then water cycle you will understand, okay. So firstly I am discussing evaporation. Evaporation में मैंने बोला on heating, तो what we are heating, answer come water, and heating temperature of the water is 100 degree Celsius. So on heating
देखो क्वेश्चन, मेक ए चेन, make a chain, put the question for yourself, you will get the answer, and from the answer again make a question and then again get the answer, and you will understand the process. See, on hitting, so we are hitting what? Answer is water. So now question arises, if I heat the water, then what happens? Water changes, किसमें चेंज हो जा रहा है? वाटर चेंजेस इनटू वेपर, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. Now I hope, is it very clear to all of you? Evaporation on heating, we are heating what? We are heating water. Then what happen when we heat water? Water changes into water vapor. Water changes into water vapor. That is evaporation, student. Now see, let's take condensation, second one. Now we observe this condensation. Okay, now in condensation what is cooling? क्या क्या कूल हो रहा है? वाटर वेपर. ठीक है, कंडेंसेशन में क्या आ गया? वाटर वेपर आ गया. ठीक है, अब नाउ व्हाट्स हैपन ऑन कूलिंग. इज इट क्लियर? मतलब ये क्या था? ऑन हीटिंग, किसको हीट कर रहे हैं? वाटर को हीट कर रहे हैं. फिर वो किसमें चेंज हो रहा है? वाटर वेपर में. तो कंडेंसेशन मतलब होता है ऑन कूलिंग. क्या होता है? ऑन कूलिंग. अब क्वेश्चन अराइज हुआ, किसको कूल कर रहे हैं? यू आर अंडरस्टैंडिंग? किसको कूल कर रहे हैं? सो द आंसर इज, हम वाटर वेपर को कूल कर रहे हैं. और वाटर वेपर को कूल किया तो ये किसमें चेंज हो गया? चेंजेस इनटू वाटर. चेंजेस इनटू वाटर. दिस इज कंडेंसेशन, स्टूडेंट. दिस इज कंडेंसेशन. One time more I repeat it for your better understanding. Evaporation means on heating. Is it clear? Condensation means on cooling. Is it clear? Now come to evaporation. On heating, किसे हीट कर रहे हैं? वाटर को. किसे हीट कर रहे हैं? वाटर को. वाटर को हीट किए, देन इट चेंजेस. किसमें चेंज हो जा रहा है? इट चेंजेस इनटू water vapor. It changes into water vapor. Is it clear? Condensation means on cooling. Condensation means on cooling. Now the question arises, किसको कूल कर रहे हैं? किसको हम कूल कर रहे हैं? So answer is, हम वाटर वेपर को कूल कर रहे हैं. किसको कूल कर रहे हैं? वाटर वेपर. एंड व्हेन वी कूल वाटर वेपर, मतलब उसे ठंडा होने दे रहे हैं. ठंडा होने, कूल करने के लिए उसको फ्रिज में नहीं रख रहे हैं. ये भी दिमाग में रखना, फ्रिज में नहीं रख के कूल कर रहे हैं. अरे जब इसको हीट कर रहे थे तो वो गर्म था वाटर. हीट करना बंद कर दोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, धीरे धीरे स्लोली करते वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा. ये मतलब हुआ. ये नहीं सोच लेना बेटा कि कूल कर रहे हैं सर बोल रहे हैं तो वाटर उठाया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया ना. हीट कर रहे थे तो वो वाटर वेपर फॉर्म में था. स्लोली जब उसका टेम्परेचर लेस होता जाएगा तो वो वाटर वेपर की जब कूलिंग होगी तो वो किस फॉर्म में आएगा? वाटर फॉर्म में आएगा. दिस इज कंडेंसेशन. I hope you are able to understand. Please watch the video. If without watching the video, if you just cram the definition, देखो definition of evaporation and condensation is of only 5 or 6 words, 6-7 words उसमें, 6-7 words उसमें.
Please watch the video so that you are able to understand both this process, evaporation and condensation. Is it clear? Now after that, there is one activity. This activity, chilled water bottle from the refrigerator you take out and you see lot of tiny drops of water on the table. This activity already I have discussed with you. Is it clear? Now student, open page number 48. Open page number 48. Is it clear? Open page number 48, and there is another activity given on this page. Breathe out on a window pane. What do you see? Little drops of water are formed on the glass. ठीक है? From where does this water appears? Discuss. So what is the meaning of this activity? Breathe. We take in, we inhale and exhale. हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालते भी हैं. Is it clear? So what is window pane? खिड़की को बोला है. ठीक है, जैसे घर में खिड़कियां होती हैं ना, उस खिड़की में ग्लास लगा हुआ है. ठीक है, शीशे की खिड़की है. तो व्हाट ही इज सेइंग, कह रहा है कि अगर आप व्हेन यू ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन की मैंने और ये ब्रीथ आउट की, तो व्हाट ही इज सेइंग, फॉर एग्जांपल मान लो यही विंडो पेन है तुम्हारी बुक. इफ आई ब्रीथ आउट देन वी विल सी small drops of water on the window pane. So he is asking from where does this water appear. ये जो आपके विंडो पेन पे, विंडो के ग्लास पे जो छोटी छोटी वाटर के ड्रॉप्स आ गए, ये कहां से आ गए. Is it clear? That he is asking in this activity. Very simple student, I explain you. See student, I don't know whether you have done this activity. आपने कभी ये फील किया है कि नहीं किया है. If you have not feel this thing before, then after watching the video you do this activity. Okay student, when you breathe out, put your hand in front of your nose. It is very what? Warm. Is it clear? वार्म एयर कम्स आउट फ्रॉम आवर नोज. हमारे नोज से गर्म हवा निकलती है. वार्म एयर कम आउट फ्रॉम आवर नोज. अब व्हेन दिस वार्म एयर कम आउट फ्रॉम योर नोज एंड देन व्हाट्स हैपन, विंडो पेन जो था, खिड़की का जो शीशा था, वो क्या था? ठंडा था, कूल था. इज इट क्लियर? सो व्हेन यू ब्रीथ आउट in this manner also our body lost the water. ठीक है, जब गर्मियों में बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, when the temperature is very hot, lot of sweat comes out. बहुत पसीना होता है, स्वेट, बहुत पसीना होता है, क्योंकि वाटर हमारी बॉडी को, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. इज इट क्लियर? एंड इवन वी लॉस वाटर और वाटर कम आउट ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी गो फॉर वॉशरूम. आप टॉयलेट जाते हो तो भी हमारे बॉडी से वाटर आउट होता है. एंड इवन व्हेन वी ब्रीथ, इन ब्रीथिंग आल्सो वी लॉस वाटर फ्रॉम आवर बॉडी. तो जब हमने ब्रीथ आउट किया तो वाटर वेपर, जो वार्म एयर निकली, व्हेन दैट वार्म एयर कम इन टच विथ दिस विंडो पेन, इज window pane,
when warm air come in touch with window pane, जो क्या था, कूल था, ये क्या था, कूल था। तो जब आपकी वार्म एयर निकली एंड व्हेन इट कम इन टच विद विंडो पेन विच इज कूल, तो यहां पे क्या हो गया, वही जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, कंडेंसेशन। अभी बताई थी ना प्रोसेस, कंडेंसेशन क्या होती है, जब वाटर वेपर ऑन कूलिंग, वाटर वेपर जब कूल होने लगते हैं, धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं, तो वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स बन जाते हैं, किसके, वाटर के। यहां यही प्रोसेस हुई बेटा, कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई। वार्म एयर व्हेन कम इन टच, क्योंकि देखो वाटर पेपर आर प्रेजेंट ऑल अराउंड द सराउंडिंग आल्सो, जब व्हेन वाटर इज आल्सो लूज फ्रॉम आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट, so when warm air come in touch with this cool window pane, then what happens, वाटर वेपर क्या हो गए, कूल हो गए, ठंडे होने लगे। जब वो ठंडे होने लगे तो कूल होने के बाद वो किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, वाटर फॉर्म में चेंज होते हैं। दैट इज द रीजन यू सी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन विंडो पेन। अब आपसे कोई ये पूछे बेटा कि किस प्रोसेस से ये हुआ, मैंने आपको दो प्रोसेस बताई है वाटर की वाली, एक मैंने आपको पढ़ाई इवापोरेशन एंड वन कंडेंसेशन। नाउ स्मॉल टाइनी, स्मॉल छोटे, TINY टाइनी ऐड नहीं किया है, स्मॉल टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन विंडो पेन। सो नाउ स्टूडेंट, विच प्रोसेस इज फॉलो हियर, इवापोरेशन और कंडेंसेशन, व्हाट प्रोसेस इज फॉलो। कब वाटर वेपर जब भी कूल होता है तब उसका वाटर बनता है, और कूलिंग वाली प्रोसेस को मैंने क्या बताया था आप लोग को, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सी, क्योंकि मैंने बोला ना विंडो पेन का क्या, ग्लास कूल था और उसके टच में आया, तो इट मींस जहां वाटर, ठीक है, कूल हो रहा है, तो कूल वाली प्रोसेस कौन होती है, कंडेंसेशन। कूल वाली प्रोसेस कौन होती है, कंडेंसेशन। ये जो हुआ एक्टिविटी 3, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए कंडेंसेशन प्रोसेस। वार्म एयर, वार्म एयर वाटर वेपर आल्सो कम आउट, सो व्हेन दे टच द कूल सरफेस विंडो पेन विच इज कूल, सो वाटर वेपर का भी टेम्परेचर क्या हो गया, लेस होने लगा, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर जो गैस फॉर्म में था, जब वो कूल हुआ तो वो क्या बन गया, वाटर। अब तुम्हें विंडो पे टाइनी ड्रॉप्स ऑफ, छोटे 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 टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर देखने को मिल रहे हैं। सो दिस हैपेंस ड्यू टू विच प्रोसेस, दिस हैपेंस ड्यू टू कंडेंसेशन। यहां कूलिंग हुई, सो द आंसर एंड द प्रोसेस फॉलो इज कंडेंसेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द activity 3. So in the same manner student, in nature we are living on the planet earth, so in the nature also water keep changing its form, ठीक है, नेचर में भी वाटर अपनी फॉर्म्स चेंज करता रहता है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, यही है ना वाटर की फॉर्म्स। सॉलिड है देन इट इज आइस, लिक्विड देन इट इज वाटर, एंड इफ इट इज गैस देन इट इज वाटर वेपर। तो नेचर में भी जो वाटर अपनी फॉर्म्स को चेंजेस करता रहता है, दैट इज नोन एज वाटर साइकिल, एंड दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। वाटर का जो सर्कुलेशन है कंटिन्यूअस ही होता रहता है ड्यू टू वाटर साइकिल। इज इट क्लियर नाउ? दिस I hope you all are able to understand evaporation, condensation and this activity also. In my previous video I discussed one activity that is based on evaporation. Now today activity which I discuss with you, in this water appears
due to what happens? First activity, don't confuse, okay? And the second activity which I have discussed, that of a bottle also. When water vapor come with the cool, chilled surface of the bottle, then what's happened? Water vapor cools and they change in the form of a water. There also condensation follow, and activity number 3 also we follow the process of condensation. Okay, thank you student.